Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the characteristics of the equilibrium constant. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर equilibrium constant की characteristics डिस्कस की और उसे डिटेल में स्टडी किया और इससे रिलेटेड हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के दो टाइप भी स्टडी किए अपनी लास्ट क्लास में, दैट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर इक्विलिब्रियम इज application of equilibrium constant. So what are the application that relate to the equilibrium constants? First application that relate to the equilibrium constant is predicting the extent of reaction. The first application is predicting the extent of reaction. Predicting the extent of reaction. So what do you mean by how we predict the extent of reaction? की reaction कितनी complete हुई है, ये बात हमें कैसे पता चलेगी? This concept we will find out with the help of equilibrium constant value. You know that what is K? K is the equilibrium constant and it is equal to the concentration of the product upon concentration of the reactant. Okay. So we know that K is equal to P upon R. तो हमने relate करना है if the K value is greater than 10 raised to power K value is greater than 10 की power 3 and K value is less than 10 की power -3. हमें इससे रिलेट करेंगे और अगर K की वैल्यू 10 raised to power 3 से -3 के बीच में लाई करती है तब क्या होता है. तो अगेन you know that K is equal to P upon R. P is the product and R is the reactant. This ratio represent the equilibrium constant. This ratio of the equilibrium constant equal to the concentration of the product upon concentration of the reactant. So students, as you know that कोई भी रिएक्शन हमारी चल रही है, अगर उसकी वैल्यू K की वैल्यू जो होगी 10 raised to power 3 से ग्रेटर आती है तो क्या कंसीडर किया जाता है? तो ये लार्जर द वैल्यू ऑफ K तो कंसीडर किया जाता है जो K की वैल्यू है वो बहुत लार्जर है, द ग्रेटर विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रिलेटिव टू दोज ऑफ द रिएक्टेंट. उस कंडीशन में ये कंसीडर किया जाता है जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट की का जो अमाउंट होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा ओवर रिएक्टेंट पे और रिएक्शन होगी नियर टू कंप्लीशन. जो रिएक्शन होगी वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से. ठीक है. तो वी विल टेक सम एग्जांपल टू explain this. If the K value is greater than 10 raised to power 3, then consider that ये consider किया जाता है. We will take some example. H2 plus O2, ठीक है, और we can say that half O2 form H2O. And in this condition, the value of Kc, here the C represent the concentration, K represent the equilibrium constant. This value is near about 2.4 into 10 raised to power 47. So this value is greater than 10 raised to power 3 value. ठीक है. तो अब जो K की वैल्यू है वो हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है. K की यूनिट भी फिक्स नहीं होती. ठीक है. तो K की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से ग्रेटर आती है तो ये कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट ओवर द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर द रिएक्टेंट. ठीक है. एट इक्विलिब्रियम ऑफ K इज वेरी लार्ज एंड द रिएक्शन प्रोसीड नियर टू कंप्लीशन. और जो रिएक्शन है वो नियर अबाउट कंप्लीशन तक है. ठीक है. कंप्लीट होने वाली है रिएक्शन. और अब K के लिए या बोल सकते हैं हम कोई रिएक्शन है वो किस एक्सटेंट तक प्रिडिक्ट की जा सकती है कि कितनी कंप्लीट हो चुकी है. इसके लिए अब हम रिलेट करेंगे K को दोबारा से. तो अब नेक्स्ट हमारा रिलेशन रहेगा इफ द K वैल्यू, अगर हमारी जो K की वैल्यू है वो लेस देन है 10 raised to power -3 से. If the K value is less than 10 raised to power -3 तब क्या कंसीडर किया जाता है? तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं to explain this concept that N2 plus O2 form 2NO. Okay, all are present in a same phase, so it is a type of a homogeneous equilibrium. It is a type of homogeneous equilibrium, and in this condition Kc is equal to 4.8 into 10 raised to power -31. तो इन दिस कंडीशन जो K की वैल्यू है बेटा वो ठीक है लेस देन है 10 raised to power -3 से. ठीक है. -3 से कम है. कितनी वैल्यू है? K is equal to 4.8 into 10 raised to power -31. So for this condition reactant is predominant over the product. पिछली कंडीशन थी ये K is greater than 10 की power 3
और हमारी जो रिएक्शन हमने ली थी इस बात को समझाने के लिए वो ये रिएक्शन थी बच्चों, हाफ H2O, और इसके लिए जो मैंने Kc लिखा था दैट Kc इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻47। इन दिस कंडीशन K वैल्यू इज ग्रेटर एंड द रिएक्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। बोला नहीं है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। K की वैल्यू ग्रेटर थी तो प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट, एंड इन दिस कंडीशन K की वैल्यू 10⁻³ से कम है, 10⁻31 है। सो रिएक्टेंट इज प्रीडोमिनेट ओवर द प्रोडक्ट, और पिछली वाली कंडीशन में था प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट। ओके, इतना आपको पता हो। और अगर K की जो रेंज है, K की जो वैल्यूज आती हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो K की, अगर वो वैल्यू लाई करती है 10⁻³ टू K की वैल्यू लाई करती है 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में, अगर वैल्यू इस कंडीशन तक लाई करती है टू द 10⁻³ टू 10⁻⁻3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस कंसेंट्रेशन में K की वैल्यू है, तो एट दैट कंडीशन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी प्रीडोमिनेंट नहीं होगा, ना तो प्रोडक्ट ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगा, ना जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगी। अगर K की वैल्यू इस रेंज में लाई करती है तो एट दैट कंडीशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बोथ आर प्रेजेंट। सो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, इस बात को समझाने के लिए भी एग्जांपल ले रहे हैं हम। N2O4 जब इसकी N2O4 की डिकम्पोजिशन होती है तो बच्चे बनते हैं 2NO, या हम बोल सकते हैं जो N2O4 है वो 2 NO2 के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और इस कंडीशन के लिए जो Kc की वैल्यू है, Kc की वैल्यू है 4.64 इंटू 10⁻³ मतलब एग्जैक्ट -3 है, तो वैल्यू इन दोनों के बीच में ही 10⁻³ से 10⁻³ के तक हिलाई कर रही है। द वैल्यू है 10⁻³ तो इन दैट कंडीशन द बोथ कंसेंट्रेशन आर प्रेजेंट ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। So students, this is the first application of the equilibrium constant and how we predict the extent of reaction. So with the help of K, we predict the extent of reaction. Second application is predicting the direction of reaction. Predicting the direction of reaction. तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी? सपोज A है प्लस B फॉर्म C प्लस D, तो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाएगी या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में जाएगी। रिएक्शन कोई भी रिएक्शन है उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, दैट आल्सो डिसाइडेड बाय K। एंड व्हाट इज K? K इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड व्हाट इज Kc? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, एट द फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, सो हाउ वी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन? सो इस बात को समझाने के लिए हमें K को Q से कंपैरिजन करना पड़ेगा, K और Q का। Here the K is called equilibrium constant and Q is called reaction quotient। इसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। Q is also similar to K at the equilibrium condition and the Q is also represented like the K. It is also a ratio of the concentration of the product upon concentration of the reactant। सो Q को और K को हम कंपेयर करते हैं इस कंसेप्ट के अंदर, तो K इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड Q इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, एंड वी नो दैट सपोज वी हैव ए जनरल रिएक्शन A प्लस B एंड फॉर्म C प्लस D। ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d represent the reaction coefficients, or we can say that balancing coefficient. So how we represent the reaction in the form of a QC? It is also at the equilibrium condition. It work like similar like a equilibrium constant. So it is also equal to C upon C, D की power D, A की power A and B की power B. Okay, इतना आपको पता होना चाहिए। और at the equilibrium condition QC is equal to KC, you must remember। ठीक है, बट बच्चे अगर आपको न्यूमेरिकल दे रखा है और न्यूमेरिकल में आपको K की वैल्यू गिवन है और Q की वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू निकालनी है, और K की वैल्यू आपको गिवन है, अगर वो Q की वैल्यू से ग्रेटर आती है, या आप कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल में, सारी वैल्यूज पुट करके आप QC की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। C यहाँ पर कंसंट्रेशन के लिए है, और यहीं अगर मैंने जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है वो पार्शियल प्रेशर पे अगर मैं दे देती तो यहाँ QC की जगह हम क्या रिप्रेजेंट करते, QP रिप्रेजेंट करते। P स्मॉल p रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द gaseous particles. So
अगर जो भी प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स हैं और गैसियस नेचर के होंगे तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम Q की फॉर्म में उसे QP लिखेंगे, जैसे K की फॉर्म में उसे KP लिखते हैं। तो QP इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन and upon reactant concentration, and if these concentration are given in numerical, then how easily we will able to find out the value of the QC, and when in the numerical KC की वैल्यू अगर आपको गिवन मिलेगी तो आप QC के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर QC और KC की वैल्यू आपको गिवन होगी और QC की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, अगर दोनों के दोनों इक्वल आते हैं तो रिएक्शन का नेचर कैसा है, रिएक्शन कहाँ पे है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और वहां पर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की कंसंट्रेशन प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, और अगर मान लो सपोज आपने QC की वैल्यू कैलकुलेट करी है और QC की वैल्यू आती है ग्रेटर देन KC, KC की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में क्या मिलेगी बच्चों, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, KC की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, गिवन मिलेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू QC। ठीक है, तो KC की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, QC की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, तो अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से ग्रेटर आ जाती है तो what is the direction of reaction? तो reaction will proceed from the right to left side. रिएक्शन जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगी, तो डायरेक्शन जो होगी रिएक्टेंट साइड में चली जाएगी, मींस रिएक्शन कंप्लीट फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर QC की वैल्यू KC से क्या आती है, ग्रेटर आती है, मींस रिएक्शन का जो नेचर होगा वो बैकवर्ड साइड होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। कैसी डायरेक्शन होगी रिएक्शन की, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अगर यहीं पे QC की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं, आपको कंसंट्रेशन गिवन मिलेगी, और अगर QC की वैल्यू लेस आती है और KC की वैल्यू ग्रेटर आती है तो रिएक्शन का जो नेचर रहेगा, रिएक्शन मूव टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट साइड, मींस रिएक्शन का जो नेचर रहेगा वो रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन साइड। ठीक है, रिएक्शन कहां मूव करेगी, फॉरवर्ड साइड। If the QC value is less than KC value, means KC is greater than QC, and if QC is greater than KC, the reaction nature is backward side, means reaction move towards reverse side, और बोल सकते हैं reaction move towards right to left. Fine. And at the equilibrium condition, QC and KC की वैल्यू completely equal रहेंगी एक दूसरे के, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। In this way predict कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब न्यूमेरिकल आपको वैल्यूज गिवन मिलेंगे, आपने QC और KC को कंपेयर करना है। QC की अगर वैल्यू ग्रेटर आती है तो रिएक्शन का नेचर बैकवर्ड साइड होगा, और KC की वैल्यू अगर ग्रेटर आती है तो रिएक्शन का नेचर फॉरवर्ड साइड होगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड नाउ वी विल टेक थर्ड एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करती है। The third application that is related to the equilibrium constant, that is K. तो third application है बच्चों हमारे पास calculation of K and X. Here the K is the equilibrium constant and X is the concentration of the reactant and product particles. So हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इस एप्लीकेशन को समझाने के लिए। इस एप्लीकेशन में काफी सारे स्टेप्स हैं, हमें सारे स्टेप्स समझ आ जाएंगे जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इन दिस स्पेशली वी कैन से दैट इन दिस एप्लीकेशन सिर्फ हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को कैलकुलेट करना है with the help of numerical, with the help of some values, and also या फिर K कैलकुलेट करना आ सकता है एग्जाम में, या फिर X की वैल्यू दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। सो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है KC फॉर द रिएक्शन इज हमारी एक रिएक्शन गिवन है हमें दैट इज CO इन द गैसेस फेज विद H2 इन द गैसेस फेज, CO2 गैसेस फेज विद H2 gaseous phase. It means this is a type of a chemical homogeneous chemical equilibrium. Same phases are present both side and reactant side and product sides. And in this condition the value of the Kc that is given to you is Kc की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है 4.24, ठीक है, एट, और टेम्परेचर है 800 केल्विन। टेम्परेचर का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, CO2 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, H2 है, CO2 है, H2 है, दीज आर द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, प्रोडक्ट सब्सटेंसेस, और हमें कैलकुलेट करनी है CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट साइड में, और H2 ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। तो हमें इन सब की X मतलब इन सब की हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर बच्चों स्पेशली K और X को कैलकुलेट करना ही सीखते हैं। तो हमें एक रिएक्शन गिवन मिलेगी, ठीक है, और उसमें हमें इन सब की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना होगा।
ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन आप लोगों को गिवन है, इनिशियल बिल्कुल इनिशियल कंसेंट्रेशन हमें गिवन है, रिएक्टेंट की गिवन है क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको पता है बाद में ही बनता है, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो हमें इनिशियली गिवन है तो आप लिख सकते हैं इनिशियली गिवन कंसेंट्रेशन इज 0.1 दैट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। सो जो भी आपको एक रिएक्शन दे रखी हो तो इनिशियल कंसेंट्रेशन भी आपको गिवन होगी, आप उसको लिखिए। प्रोडक्ट की वैल्यू तब तक बनती नहीं है तो प्रोडक्ट को आप 0 और 0 रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही रिएक्टेंट अपना काम करना शुरू करेगा इन ए क्लोज कंटेनर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन हो जाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन है जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन दोनों प्रेजेंट मिलती है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सो बच्चों इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने का पहला स्टेप यही है, राइट द स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। जो भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर इक्वेशन गिवन होगी आप सॉल्यूशन में भी उस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो यहाँ से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो भी आपको इनिशियल वैल्यूज गिवन होंगी आप उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट की वैल्यूज गिवन नहीं होती तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। और एट द इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाएगी वैसे ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में से कुछ माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड में कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है जो हमारी केसी है, मतलब जो हमारी के होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू। सो प्रोडक्ट की वैल्यू है CO2, ऑल आर इन ए गैसियस स्टेट, तो हम सभी के सभी वैल्यूज लेंगे। सपोज हमारे पास कोई चीज सॉलिड या लिक्विड में होती तो दैट कंसीडर टू बी यूनिटी, दैट कंसीडर टू बी 1, बट ऑल द फेजेस आर इन गैसियस। सो गैस फेज के हैं तो हमें के की वैल्यू क्या पूरी की पूरी लेनी होगी, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन भी हम ले लेंगे। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमें गिवन है हमने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए बच्चों ऊपर देखिए, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ तक हमारा कोई काम नहीं है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट है। तो केसी हमें CO2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, H2 की वैल्यू भी x, CO की वैल्यू है 0.1 माइनस x, ऐसे ही H2O की वैल्यू है 0.1 माइनस x। ठीक है, और बच्चों केसी की वैल्यू मैंने आपको शुरू से बता दी थी, आपको गिवन थी कितनी 4.24, तो वो वैल्यू है 4.24, दैट वैल्यू इज ऑफ केसी। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है x स्क्वायर, तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x स्क्वायर ये हम उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.24। ठीक है, ये हमारे पास 0.1 माइनस 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, एक फॉर्मूला बन जाएगा 0.01 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस में 0.2x, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है फॉर्मूला बनाकर। और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.24, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है लगभग 0.0424, ओके, प्लस 4.24 एक्स स्क्वायर माइनस, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है बच्चों माइनस 0.848x, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। नाउ ये जो इक्वेशन है बच्चों इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स है, तो अगर ये प्लस का है उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब ये माइनस में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इसको हम किस तरीके से लिख पाएंगे, इसे हम लिख पाएंगे, ये इक्वल में था लेकिन उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3.8 माइनस होगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3.24x स्क्वायर, ओके, माइनस में 0.848x। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाता है एक का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आ जाएगा मेरे पास 0.0424। ठीक है, इस तरीके से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू 0। ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 0, तो 0 हमने लिख दी है। नाउ वी विल फॉर्म, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन से, तो हम इसकी क्वाड्रेट इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेट इक्वेशन आपने 10th क्लास में बच्चों सीखी भी है, तो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है क्वाड्रेट इक्वेशन, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हमारे पास पता है जो b है ये हम क्या लेट कर रहे हैं, ये a लेट कर रहे हैं, जो हमारा b है वो ये है, तो हम लेंगे 0 पॉइंट माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर आएगा 0.848, ओके, प्लस माइनस रूट हमारे पास आ रहा है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर है 0.848
ओके, का स्क्वायर -4, ए क्या है हमारे पास, ए ये है 3.24 -4 मल्टीप्लाई 3.24 मल्टीप्लाई सी, और सी क्या है हमारे पास, सी ये वैल्यू है हमारे पास, ये सी है, ये बी रिप्रेजेंट हो रहा है और ये ए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमारे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा ली है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर -4ac, तो बी का स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये हमारा हो गया 4ac 4 मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, ये रहा बी का स्क्वायर, ये आपको रिप्रेजेंट हो रहा है -4ac, सी हमारी ये वैल्यू है 0.0424, जब इन सभी वैल्यूज को डिवाइड में क्या बेटा 2a, 2 मल्टीप्लाई ए क्या है हमारा, ये वैल्यू ए की है, ठीक है 3.24, जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी प्लस और माइनस के केस में कितनी आ रही है, एक तो वैल्यू हमारी आएगी 0.067, ठीक है, और एक वैल्यू हमारी आ रही है लगभग 0.194, प्लस माइनस के केस में दो वैल्यूज हमारी रिप्रेजेंट होंगी, तो हमारे पास जो, अब हम अपनी इक्वेशन पे चलते हैं, हमने किस किस की कंसंट्रेशन निकालनी थी, CO2 की निकालनी थी, H2 की निकालनी थी, CO की निकालनी थी और H2O की, इन सबकी कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हमारे पास क्या आंसर आया एक्चुअली में, तो हमारे पास CO2 और H2 का जो आंसर आएगा बेटा वो ये होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन CO2 और H2, और जो हमारी वैल्यूज आएगी किसकी, जो हमारी वैल्यू आएगी CO की, CO और H2 हमारे क्या था, रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट थे, तो उनकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, सपोज हमने प्लस वैल्यू ले ली है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 0.1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.067 आई है सपोज, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू 0.1 में से आप क्या करेंगे 0. ये वैल्यू हमने ले ली, ये कंसंट्रेशन ले ली हमने CO2 और H2 की, और अब हमने कंसंट्रेशन निकालनी है CO की और H2O की, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी 0.1 माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, किसको रिप्रेजेंट कर रही थी ये कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रही थी 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे आप लोग, और x की वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लेंगे, लगभग हमारा दोनों के केस में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0.067, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.1 में से माइनस करने के बाद 0.033 मोलैरिटी की कंसंट्रेशन यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको इसके अंदर गिवन मिलेगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन मिलेगी माइनस में x करेंगे, और प्रोडक्ट साइड में भी आप क्या लिखेंगे x। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट साइड में बैलेंसिंग कोफिशिएंट लगा हुआ है, मान लो बैलेंस करने के लिए 2 अप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई x होगा, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। सपोज ये बात एक तो आपको पता चले, ये एक हमारी एप्लीकेशन बन जाती है, थर्ड एप्लीकेशन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ x, ठीक है, एंड ऑल्सो इन सम कंडीशन क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर आपको x की वैल्यू गिवन मिलेगी और आप k की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। सपोज आपके पास एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज यहाँ मैं ले लेती हूँ 2, यहाँ सपोज 3, यहाँ ले लिया हमने 4c प्लस 2d, तो आपको पता होना चाहिए जो भी आपकी x है, जैसे आपने इनिशियली सपोज मेरे पास 0.2 है, इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन फाइनल कंडीशन में 0.2x और 0.2x, और ये जो वैल्यू आप लेंगे ये 4 into x लेंगे, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है इसका भी आपने ध्यान में रखना है, पावर में जाएगी या इंटू में रहेगी, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो इतना भी आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो दीज आर द 3 एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो पहली एप्लीकेशन थी प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड एप्लीकेशन थी प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एंड द थर्ड एप्लीकेशन थी हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। सो इतना आप लोगों को पता हो, तो आज का टॉपिक रहा हमारा रिलेटेड टू द एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ली-चैटलियर प्रिंसिपल है एक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो ली-चैटलियर कंसेप्ट की हेल्प से पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। सो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग द
इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट एक्सप्लेन बाय द लीच चेटलियर. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली.